everybody, what is 1 plus 1? 1 plus 1 is? There is only one answer to that, correct? How much is 2 plus 2? There is only one answer to it. Kya chal raha hai also has only one answer. What is the answer? What is it? Fog chal raha hai, right? So that is the branding master class that we're going to be learning in the next 30 minutes, because we have with us Mr. Darshan Patel, who was responsible for creating some of the most iconic brands in the Indian market. You're talking about Move, you're talking about Crack, you're talking about Borosoft, Itchguard, Ringguard, Dermicool, Livon, Decold, Set Wet, and all the other brands that you have already recollect. He's continued driving his passion for creating new brands with his new company, Vinny Cosmetics Private Limited. Brands like Fog Body Spray, Fog Scent, White Tone Face Cream, Glam Up, Awesome, and Fog Powder are now household names. Extraordinary passion is something that you will see once he starts talking. Far-sighted, absolute visionary, and has the ability to adapt and upgrade. And these are some of the unique traits that you will get to see when he shares this story with us today. His mantra for success seems to be pretty simple. He says, think, aim, achieve. That is what he is going to build his entire masterclass on. And I'm not at all surprised nobody stood up. Everybody is seated, because this is one brand building exercise that all of us love to learn. So please put your hands together as I invite on stage the man himself, Mr. Darshan Patel. Good afternoon. Boman Bhai, Gitambar Bhai, Shekhar Bhai, and thank you, Creda YouthCon, to ask me to come and share my experience, life experience with you. I don't know why I was chosen, but I'll tell you my story, my way, what I have learned. I have never been to any big institution to learn. My education was just a chemistry graduate. I was born in Gujarat, brought up in Orissa state in a small town called Sambalpur, which was having a population of less than 60,000 when my father went there. He was a pharmacist. He started his pharmaceutical company there. My education was in Hindi medium. I was Kendriya Vidyalaya student for 12 years. I came back to Gujarat in 81, where I was not able to read Gujarati also. So for me to learn Gujarati, to read, it took me another 4 years in my college days. I have friends, they were all in Orissa state, so I have to make new friends also. That was also a learning to make new friends. As you grow, you need to create good friends also. I graduated as a chemistry, as was my subject. So chemistry is a mystery subject. It's a mystery science thing. Chemistry is mystery. And same thing is about marketing. Marketing is also a mystery subject. You don't know. It took me 7 years to learn basic of marketing, because, and I will share you that 7 years, there was no growth. I was not able to understand that thing. Whatever my father used to tell me, I used to do that thing old ways. But after 7 years, I met somebody. Dr. Radhakrishnan said, you have to have somebody as mentor. I met somebody and he told me one thing: marketing is about stealing. Marketing चोरी करने का काम है. So why is a stealing? You steal market share from somebody for yourself. That is marketing. Then I learned one more lesson out of it: innovation. What is innovation? Innovation is idea
And what is idea? Idea is insight. So how to get the insight? Once you have insight, you will create an idea around that thing, then the innovation in product will happen. I will share you few brands which I have created and how it was created. So there is a science behind this thing. Marketing is science. You need to follow certain marketing laws which was written by somebody in 1958. His name was Obvious Adam. If you can find out that book, Obvious Adams, it's a 46-page book, and that shows you can learn that thing, what is obviousness. It is, what is obvious? Obvious is to, you can understand easily, you can see easily, it has to be simple thing. So any problem you solve has to have a simple solution. Then and then common people understand. So I read another book where from there I picked up few things. The first thing was, the problem you solve has to be simple. It cannot be a complex problem. And it has to check with human mind. It cannot be a problem which people don't understand, solution which people don't understand. It has to check with human mind. And it has to be understood by everybody. सबको मालूम पड़ना चाहिए. एक आपके घर में काम करता हुआ ड्राइवर को भी, आपके वाइफ को भी, आपके दादी को भी, आपके दादा को भी, आपके फ्रेंड्स को भी, अगर आपके आइडिया को उन लोगों ने समझ लिया, if they understand your idea, right, easily, and the solution what you are giving, I think you have won 50-60% of the battle. Then comes, you have to put that idea in small, in paper, in the shortest way. You cannot write down your idea 10 pages. It has to have minimum number of words. Because if you will use lot of jargons into that thing, common people doesn't understand that thing. For common people, what they see, this is my problem, this is the solution, that's way. So once you put that thing on paper, you read yourself, you ask your friends to read that thing, or you share that idea with your friends, family, with your teammate, within company, right? It should explode that idea in mind. And I will share you few brands which has been created on those insight and how it was done. And another thing is, time has to ripe. समय पकना बहुत जरूरी है. अगर समय पकने के पहले आप एक आइडिया लाओगे, समय नहीं पका होगा तो आइडिया फेल हो जाएगा. तो समय पकना बहुत जरूरी है. आई विल शेयर यू माय लिव ऑन इनसाइट. वो कहाँ से मिलती है? इनसाइट कहाँ होती है? या तो घर में होती है, या तो पड़ोस में होती है, आपके सराउंडिंग में ही होती है. मैं संडे को घर रहता था, मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे था, बाहर बालकनी थी, और उस घर के सामने में फ्लैट्स थे. वो फ्लैट्स में संडे को एक कॉमन चीज़ दिखती थी. मैं जाके बाहर खड़ा रहता था, बैठता था, वहाँ पे फीमेल्स आते थे बालकनी में. संडे को यूजुअली पहले लोग शैम्पू करते थे, बाल धोते थे, तो सब बालकनी में आते थे बाल सुखाने के लिए. दे यूज्ड टू होल्ड देयर हेयर, प्ले विद दैट हेयर. धीरे 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 बाल को, उनको 20-25 मिनट होता था. कुछ बाल टूट भी जाते थे, तोड़ के वो नीचे फेंक देते थे, उनको दर्द होता था. फॉर फीमेल टू ब्रेक हेयर इज ए ज्वेल टू देम. और वो तोड़ देते थे, उनको ऐसा लगता था कि मेरे कितने बाल चले गए. वहाँ से मुझे एक मालूम चला कि दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ, शैम्पू करते हैं टेंगल हो जाते हैं हेयर, ठीक बात है, कंडीशनर करो तो भी टेंगल हो जाते हैं. इसको कोई जल्दी खोल सकता है क्या? तो वहाँ से इंसाइट आई, उससे प्रोडक्ट डेवलप किया गया, शेयर किया गया, और लोगों को बताया गया कि आप इसके 2 ड्रॉप लगा लो, आपके बाल इंस्टेंटली डिटेंगल हो जाएंगे. एंड इट वॉज डिटेंगल. सो इंसाइट टू दिस थिंग. Another example I will give you of
Each guard is a classic example. See, इनसाइट आप में होती है, ठीक बात है। मेरे हिसाब से दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसने खुजली नहीं की है, इच नहीं किया है। सब करते हैं, सब रात को घर जाके एक बार टाइट कपड़े निकाल देते हैं, ईज होते हैं, रात को कुछ नहीं तो चद्दर के नीचे हाथ डाल के भी खुजाते हैं। और मैंने बोला मैं करता हूं तो दूसरे लोग भी करते होंगे। फिर मैंने शेयर किया अपने आइडिया को कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे खुजली नहीं होता है। मैं बोला यार मेरे को होता है, आपको क्यों नहीं होता है। फिर धीरे धीरे ओपन होने लग गए। सी रिसर्च कहाँ होता है, आपके आसपास ही रिसर्च हो जाता है। वो बोलते हैं हाँ मुझे होता है, फिर तीसरा बोलता है मुझे होता है। अब 10 में से 8 लोगों ने बोल दिया मुझे होता है। सो प्रॉब्लम इज ऑब्वियस, नाउ यू हैव टू गिव ए सॉल्यूशन। इनसाइट यहाँ से निकाला, उसका प्रोडक्ट तैयार किया, इनोवेशन हो गया। सो these are the classic way of finding out insight. I will give you Dermicool. Dermicool जब हमने लॉन्च किया उसके पहले घमोरियो के पाउडर के लिए एक बहुत बड़ी ब्रांड थी, MNC की ब्रांड थी, नाइसिल नाम था उसका। तो नाइसिल वॉज द ब्रांड लीडर। अब देखो मार्केटिंग क्या है, मार्केट शेयर को स्टील करना, चोरी करना। तो हमने देखा कि नाइसिल एज ए प्रोडक्ट क्या है, तकलीफें समर है, इंडिया इज ए वेरी हॉट कंट्री। तो यहाँ पे गर्मियों में घमोरिया होना, बच्चों को होना, बड़ों को होना, छोटे छोटे बच्चों को बहुत होती है। उसके सॉल्यूशन में हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, हमने रिसर्च किया। अब रिसर्च के फाइंडिंग्स लेट आ रहे थे, हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया था, पैकिंग तैयार कर लिया, इवन प्रोडक्शन भी कर लिया था। मुझे मालूम है मैं और दीपम भाई उस दिन साथ में रिसर्च प्रेजेंटेशन में बैठे थे। कंपनी में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो चुका था, लेकिन वहाँ से एक इंसाइट आई रिसर्च में से कि जब घमोरिया होती है ना तो सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए, एक कूलिंग इफेक्ट चाहिए। गर्मी बहुत लगती है, खुजली बहुत होती है घमोरिया की, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मिल जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि नाइसिल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है और हमने भी नहीं सोचा था ऐसे। लेकिन वहाँ से ही हमको ऑन द स्पॉट आइडिया आया, इफ वी कैन पुट लिटल मेंथोल इन पाउडर, राइट, it will give you cooling effect, and menthol is a anti-pyretic thing also कि वो खुजली भी बंद कर देता है, क्योंकि आपका माइंड को डाइवर्ट कर देता है तो आपको खुजली नहीं होती है। मेंथोल का काम वो है। तो हमने प्रोडक्शन रुकवाया फैक्ट्री में, सब माल जो बना था उसको कैंसिल करवाया, उसका नाम चेंज किया हमने प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट का नाम पहले और कुछ था, लेकिन वहाँ से इनसाइट से हमें मिला तो हमने बोला उसको डर्मीकूल उसका नाम दे दिया, बना हुआ चीज़ फेंक दिया। अगर हम वो करते तो फेल होते, लेकिन इनसाइट को पकड़ के रखा, प्रोडक्ट को फिर से डेवलप किया, 15 दिन लेट किया, बट इट वॉज ए सक्सेसफुल थिंग। सो एक छोटी छोटी चीज है। मैं जब मार्केटिंग सीख गया ना, तब मैंने सर से पांव तक जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल थे ना, सब पे काम किया था। आप देख लो, क्रैक का हिस्ट्री देख लो, फटी एड़िया है। मैं कल रात को किसी के साथ शेयर कर रहा था कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया था बंस के लिए, बर्नोल के सामने में, लेकिन रिसर्च किया तब मालूम चला, 93 की बात कर रहा हूँ, तो बोले कि नहीं बंस तो अभी घर में नहीं होते हैं, बर्नोल होता है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, दिवाली आती है तो निकाल के फेंक देते हैं। मार्केट ग्रुप क्यों नहीं बंस होते हैं? बोले नहीं, पहले तो हम चूल्हे में बनाते हैं, अभी गैस पे बनाते हैं, प्रेशर कुकर आ गया है, तो बंस के इंसिडेंस फीमेल में कम होने लगे। हमने बोला जब मार्केट ही नहीं है तो प्रोडक्ट लेके क्या करना। लेकिन प्रोडक्ट का काम क्या था, हीलिंग का काम था। अब प्रोडक्ट पड़ा था, मैं ट्रैवल कर रहा था बॉम्बे, चर्चगेट स्टेशन पे लोकल ट्रेन से उतरा। जहाँ उतरा मेरे आगे के क्लास डब्बे के अंदर में फीमेल का डब्बा था, काफ़ी फीमेल्स उतरी, वो चल रही थी और मेरी नज़र उन फीमेल्स पे गई। उसमें एक कॉमन चीज़ देखी मैंने देखी कि 70-80% फीमेल्स की एड़िया फटी हुई थी
तो वहाँ से मैंने एक इंसाइट लिया। फिर मैंने घर पे पूछा, मेरे घर पे भी है, मेरी मम्मी को भी था, मेरी वाइफ को भी एडिया फट। मैं बोला करते क्या हैं इन लोग? तो बोले कि नहीं, हम तो एडिया फट जाती है तेल लगा लेते हैं, वैसेलिन लगा लेते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो हमने जो प्रोडक्ट बर्न्स के लिए डेवलप किया था उसको हमने कंज्यूमर पे लगा के 15 दिन के लिए एक ट्रायल लिए, 10 कंज्यूमर ढूंढे और हमारे सरप्राइज में हुआ कि 5-6 डे में उसको हीलिंग अच्छा हो रहा। सो उस प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन मिल गया। हमने वहाँ पे आइडिया निकाला, रख दिया, उसको लॉन्च कर दिया। पहले लेडीज क्या है कि पाँव चेहरे का ध्यान रखते थी, एडियो का ध्यान नहीं रखती थी। उनको मालूम था प्रॉब्लम है लेकिन वो लगा नहीं रही थी। तो हमने उसके लिए एक नया कैंपेन तैयार किया जो हमने सिर्फ 6 महीना ही चलाया था, जो आज भी लोगों को याद है। अगर आप घर पे जाके दे उनको वो याद है, चेहरे से राजरानी पैरों से नौकरानी। जब हमने कैंपेन किया, इट हर्ट फीमेल सो मच, राइट, सबने उसको लगाना चालू किया। हम जो 20 लाख ट्यूब बेचते थे साल के अंदर में 4 महीने में, उस साल हमने 1 करोड़ 19 लाख ट्यूबें बेची थी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, माइंड के साथ में खेलना होता है। कंज्यूमर मार्केटिंग इज अबाउट प्लेइंग विथ माइंड, क्रिएटिंग प्लेस फॉर योर सेल्फ इन द माइंड। नाउ आई विल कम इन टू फॉग दिस थिंग। ये तो बहुत बड़ा अनुभव था मेरे पास में। फॉग मैंने उसके पहले सेटवेट डिओडोरेंट भी बनाया था जो इंडिया का नंबर 2 ब्रांड था। फिर मैंने 2006 में अपनी फैमिली बिजनेस से अलग हो गया। 2010 में मैंने नई कंपनी चालू की और पहले 2 साल तो एक टीम बनाने में लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में लगते हैं। इंडिया में जम्मू से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एफएमसीजी के अंदर में सबसे बड़ा पेन है टीम बनाओ और डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। तो पहले हमने 1.5 साल वो काम किया। उस समय हमारे पास में एक आइडिया आया, क्योंकि डिओडोरेंट का मार्केट जो था वो इंडिया के अंदर में 30% ग्रो कर रहा था एवरी ईयर। और हमने बोला कि अगर हम इस कैटेगरी में नहीं हैं तो, क्योंकि कहीं भी जाना है ग्रोइंग कैटेगरी में जाना है। जैसे रियल एस्टेट है, शेखर भाई ने बताया, बोमन भाई बात करते हैं कि इसे ग्रोइंग इंडस्ट्री। जब ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो उसमें मेरा मार्केट शेयर होना चाहिए, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती। तो हमने डिओडोरेंट को पकड़ा, हमने रिसर्च की, लोगों से जाके मिले। रिसर्च के अंदर में सब डिओडोरेंट एक ही तरह के होते हैं कि सब में से परफ्यूम निकलता है, आप लगाओ अच्छा परफ्यूम होगा, लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, वैसा होता नहीं है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में बताते हैं कि आप लगाओगे तो बहुत सारी लड़कियां आपके आसपास में मंडराने लग जाएंगी। दैट इज एस्पिरेशन इन एडवर्टाइजिंग। रियलिटी में ऐसा नहीं होता था। उस रिसर्च में हमने जब पूछा कि कोई डिससेटिस्फेक्शन है, वहाँ डिससेटिस्फेक्शन ही नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन ग्रुप में से, हर एक ग्रुप में से एक चीज आ रही थी, ये हमारा कैन है ना वो जल्दी खत्म हो जाता है। अब उसके 2 सॉल्यूशन थे, इधर वो कैन की साइज बढ़ा दो या और कुछ सोचो जिससे करके मार्केट में एक डिस्ट्रप्शन आए, लोग सोचने पे वो करे, वैल्यू फॉर मनी दिखे। तो हमने एक बिना गैस वाला फॉग बनाया, छोटा सा कैन लेके गए। फर्स्ट टाइम जहाँ बन रहा था, हम कंज्यूमर के पास में, लोग हंसते थे कि इसको डिओडोरेंट थोड़ी बोलते हैं। और हमने 3 महीने तक स्ट्रगल किया। दीपम भाई मेरे को पूछते थे, दशरथ भाई नो गैस मीन्स व्हाट, हाउ कंज्यूमर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 3 महीने के स्ट्रगल के बाद में हमें एक आइडिया मिला कि मैंने दीपम भाई को दिखाया ग्लास में कि देखो यहाँ से गैस उड़ रहा है। क्योंकि जब लोग लगाते थे तब आंख बंद करके लगाते हैं। जब आंख बंद करके लगाते हो, आप खोलते हो आंख, उसके पहले तो गैस उड़ जाता है, तो लोगों को मालूम ही नहीं चलता था। तो हमने उसको फिजिकली दिखाया कि इस बीकर के अंदर में से आपको गैस दिख रहा है उड़ते हुए, जो बेकार हो जाता है। और हमने एक सिंपल एडवर्टाइजिंग बताई कि इसमें गैस है, इसमें गैस नहीं है। वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर जो होते हैं वो वैल्यू सीकर्स हैं, वो ऐसे ही पैसा नहीं उड़ाते हैं। दे ऑलवेज लुक फॉर वैल्यू फॉर मनी। इंडिया हो, यूएस हो कि वर्ल्ड का कोई भी पार्ट हो, कंज्यूमर ऑलवेज वैल्यू देखता ही है। तो
हमने उसको लॉन्च किया, जब लोगों ने उसको देखा, पहले महीने हमने 1.5 लाख पीस बेचे। देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। दूसरे महीने 2.5 लाख पीस बेचे, तीसरे महीने हमने 4.5 लाख पीस बेचे, फोर्थ मंथ हमने 12 लाख पीस बेचे। और उस दिन से तब तक मुझे भी अनुभव नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है, एक आइडिया में कितना दम होता है। वो चौथे मंथ के बाद में हमने 5 साल तक हर महीने अपने सेल्स टारगेट को बीट किया, हर महीने 1-1 लाख कैन बढ़ाते गए। टुडे वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 65 to 70 lakh cans पर मंथ। उसमें सिंपल था कि यहाँ गैस उड़ जाता है, इसमें गैस नहीं होता है, आपको परफ्यूम लिक्विड मिलता है, कैन लंबे समय तक चलता है, 800 स्प्रे मिलते हैं, सब वैल्यू दिख गया उनको। और हमने कॉन्शियसली फॉग का नाम भी कैसे ढूंढा, हमने बोला कि लोग अट्रैक्शन में जाते हैं, हम अट्रैक्शन में नहीं जाएंगे, फॉग की एडवर्टाइजिंग में अट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजिंग चलती थी, मैंने सेटवेट भी बनाया था, तो वो कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजिंग में सिडक्शन होता था। इंडिया के घरों में एक ही टेलीविजन है, 90% ऑफ इंडिया होम है सिंगल स्क्रीन, एक ही टेलीविजन है। घर में सब साथ में बैठ के देखते हैं, दादा भी साथ में बैठता है, दादी भी बैठती है, बेटी भी बैठता है, बहू भी, सब साथ में बैठ के देखते हैं। तो हमने बोला कि नहीं, हमारी एडवर्टाइजिंग हम उसको सिंपल रखेंगे। तो हमने वहाँ पे स्ट्रेटेजी लिखी कि हमारी ब्रांड क्या होगी, विल बी फ्रेंड ऑफ गुड गाइस, फ्रेंड ऑफ गुड गर्ल्स। वहाँ से हमने FOGG निकाल लिया और उसका नाम फॉग डाल दिया। स्ट्रेटेजी में से ही हमें नाम भी मिल जाते हैं। अगर आप मेरे ब्रांड्स के नाम देखोगे, मूव, क्रैक, इचगार्ड, रिंगार्ड, डर्मीकूल, लिवॉन, दिस आर वेरी शॉर्ट नेम्स, क्योंकि कंज्यूमर को है ना छोटे नाम जल्दी याद रहते हैं। वो हमें अनुभव से मालूम चला, हम लंबे नाम रखते हैं तो लोगों को याद नहीं रहते हैं, छोटे नाम होते हैं जल्दी याद रहते हैं। और हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सिंपल वे में, वो कंज्यूमर समझ जाता है तो आपकी ब्रांड बनती है। तो मेरे लिए ब्रांड क्या है, व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड इज व्हेन पीपल बाय यू अगेन एंड अगेन। अगर आपको लोग आपकी प्रोडक्ट को बार बार खरीदे तभी वो ब्रांड है, नहीं तो ब्रांड नहीं है। दैट इज द डेफिनेशन। थैंक यू। और एक चीज बताऊं, फॉग is available in 102 countries. Thank you. मजा आ रही है समरी। आओ। एक चीज तो है भाई, कैन यू हियर मी? एक चीज तो है, यूथ वालों ने इतना पावर पैक परफॉर्मेंस किया है कि एक सेशन दूसरे सेशन से बेटर होते जा रहा है। सवेरे अंकुर रोला जी rocked it, then Dr. Mr. Pillai rocked it, then for some bit Shekhar Bhai also knocked it out of the park, and now we have Darshan by base. क्या चल रहा है? वो भी एक हिस्ट्री है। वो कैसे निकला मैं बताता हूँ आपको। मैं और दीपम भाई हैदराबाद में थे, हम रिटेल विजिट करते थे। हम जाके दुकानदार को पूछते थे कि डीओ में क्या चलता है, तो बोलता है सर फॉग चलता है। दूसरे रिटेलर को पूछा कि डीओ में क्या चलता है, बोलता है फॉग चलता है। हमने 8-10 को पूछ लिया। फिर मैंने दीपम को बोला, मैं जानता हूँ, आप जानते हो, दुकान वाले जानते हैं, तो इंडिया को भी बताते हैं फॉग चलता है। तो हमने उसका कैंपेन कर दिया कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। पहले तो आपको हेलो, ये माइक को ऑन करना नहीं सीखे हम लोग। हाँ हेलो, अरे वाह आवाज आ गई। ऐसे क्या सवाल पूछा आई डोंट नो, बट सीरियसली पूछ रहा हूँ। ही इज सो क्लैरिटी, सो मच ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये ऑब्वियस एडम बुक आपने बताई है ना, कॉपी है आपके पास? मेरे पास है। तो हम जेरोक्स करके ले लें? पक्का।
इसका क्या वैल्यू लगाए मिस्टर पिल्लई, ये बुक का? ब्लैंक चेक है ना, साइन किए बिना भी दे देंगे। मेरे हिसाब से अमेजोन पे मिल रही है, 1000 रुपीज के आसपास की है। 46 पेज इज अबाउट वन एडवर्टाइजिंग पर्सन वॉज नॉट इन टू एडवर्टाइजिंग एंड ही बिकेम एडवर्टाइजिंग गुरु। एंड उसका नाम एडम समथिंग था, लेकिन लोगों के उसको एक ही आदत थी, ऑब्वियसनेस ढूंढता था, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, इसलिए उसका नाम ऑब्वियस एडम्स रख दिया गया था। छोटी सी कहानी है, बहुत लंबी है, 46 पेज की छोटी सी बुक है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने बुक क्यों नहीं लिखी? मैं लिखना चाहता हूँ। हर्षुल, आई विल गिव यू हर्षुल फ्रॉम क्रेडाई, वो आपके साथ ये बुक लिखेगा। पक्का। उसमें मेरे भी क्रेडिट्स लिखना और हम बेचेंगे, क्योंकि आपने जो 1980s या 90s में सोचा, जो कि सॉल्यूशन सिंपल होना चाहिए, ह्यूमन रिलेटेड होना चाहिए, वो स्टीव जॉब्स ने कॉपी करके एप्पल बना दी। फिर आपने बोला कि आदमी को हर चीज समझनी चाहिए, तो जेफ बेजोस बोलता था उसके लोगों को कि लंबे लंबे रिपोर्ट्स मत लेके आओ, एक पेज में बना के लेके आओ ताकि लोगों को समझ पड़े। तो आपने अगर बुक लिखी होती तो आप और पैसा कमाते। पैसा कमाने से भी, सिर्फ मैं पैसा तो कमा लेता हूँ, मेरे लिए पैसा ऑलवेज बाय प्रोडक्ट रहा है। मुझे आइडियाज़ में काम करने में इतना पैशन, इतना मज़ा आता है, तो अगर आइडियाज़ आपके अच्छे हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो मैं पैसा बाद में सोचता हूँ, पहले आइडिया सोच लेता हूँ, फिर वहाँ से वैल्यू क्रिएट होती है। ये गुजरात का पानी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है भाई। कल हमारे चंदू भाई बोले नारायण नारायण, है ना, फाइंड द प्रॉब्लम, सॉल्व इट, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें उन्होंने माल बनाया। आप भी नारायण नारायण करते, लोगों का, खुद का, इच गार्ड का, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते करते पैसा बनाया। बट एक सवाल है मेरे मन में, आप लोग सब चंदू भाई के इसमें भी थे कल। चंदू भाई ने हमको बताया कि वो एमएनसी को बिजनेस नहीं बेचते, उन्होंने बेचा ही नहीं, उन्होंने चैलेंजिंग लिया और वो बनाते गए उनकी कंपनी। वेरएज आपने सक्सेसफुली यू हैव डाइवेस्टेड। तो फिलोसफिकली क्या सोचे हम? सी, इट डिपेंड्स करता है। मैं ऐसे समझता हूँ कि बिजनेस का काम है वैल्यू क्रिएशन। मैं अपने लिए करूँ, अपनी टीम के लिए करूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करूँ, और वैल्यू ऐसी क्रिएट करूँ कि एक परपेचुअल वैल्यू है, वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती। उसके दोनों तरीके हैं, इधर आप डाइवेस्ट करो तो भी आपकी वैल्यू बनेगी, नहीं करोगे, आप अपनी कंपनी चलाते रहोगे तो भी बने। सी, मैंने जब सेकंड कंपनी में विनी कॉस्मेटिक में जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय फिक्स किया था कि मैं 10 साल से ज़्यादा काम नहीं करूँगा। क्यों? कि मेरा काम जो है, हम लोग, मैं और दीपम दोनों घर से मार्केटिंग है ना, घर में बैठ के नहीं हो सकता, ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकता। अगर आपको इनसाइट ढूंढनी है तो कंज्यूमर के पास जाना पड़ता है, मार्केट के पास जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, कुछ नए नए आइडियाज़ के लिए लोगों को मिलना पड़ता है। तो हम लोग महीने में 12 से 15 दिन तो घर के बाहर ही रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे बड़े हो गए वो भी नहीं मालूम था, फैमिली को टाइम दिया नहीं दिया ऐसे था। जैसे डॉक्टर राधा ने बोला कि यू हैव टू ग्रो इट 30x ऑफ व्हाट योर फादर गेव, राइट? आई थिंक वी हैव ग्रोन 600x ऑफ व्हाट आवर फादर गेव। सो मनी इज देयर, जितना चाहिए उससे अधिक पैसा है, वैसी कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं ऑलवेज समझता हूँ कि बिजनेस को वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू किस लिए? तभी 30x होगा, नहीं तो 30x नहीं हो सकता है। इफ़ यू विल नॉट वैल्यू योर बिजनेस, वो 30x नहीं हो सकता है। वो 30x करने के लिए आपको वैल्यू तो करना ही पड़ेगा उसका। बाकी तो पेपर में हर साल जो बैलेंस शीट में दिखता है कि 200 करोड़ का प्रॉफिट, वो दिखते ही जाएगा। अब वो 200 करोड़ के प्रॉफिट का अगर वैल्यू क्रिएशन करना है तो मेरे हिसाब से यू नीड टू डाइवेस्ट योरसेल्फ। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। अभी एक मैं वहाँ से आपकी बात सुन रहा था
आपने पहले लेडी को बालकनी में देखा उसके बाल झड़ते हुए, फिर आपने लेडी को देखा उसके पैर, यानी आपने सब लेडीज को देख देख के ही बनाया? सिर्फ उनके कमर दर्द को भी देखा था मैंने मुंह के लिए. Ladies, you all are the inspiration for so many things. बिकॉज सी अगर घर में एंट्री चाहिए तो लेडीज के थ्रू ही हो सकती है. सो आपको अगर किसी घर में एंट्री लेनी है, इफ यू मेक दैट फीमेल योर फ्रेंड, योर एंट्री इज इजी. आपको बच्चे की भी कोई चीज़ बेचनी है तो उसके लिए पहले मम्मी को ही कन्विंस करना पड़ेगा, तभी आप घर में जा सकते हो. वैसी ही चीज़ है कि अगर फीमेल को आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट आ गया तो फिर वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हैं, वो दूसरा सॉल्यूशन ढूंढने नहीं जाते हैं. वेर इज मेल टारगेट ऑडियंस है ना, वो बंदर की तरह, इज लाइक मंकी, दे कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दैट थिंग. देर इज ए इनसाइट देयर. आप घर में देखना, आप टेलीविजन देखोगे ना, मेल और फीमेल को दोनों को ऑब्जर्व करो. मेल होगा उसके हाथ में रिमोट दे दो, फीमेल को रिमोट दे दो. फीमेल आधे घंटे तक चैनल नहीं चेंज करेगी और मेल है ना आधे घंटे में 15 बार चेंज कर देगा. तो ये हमें दिक्कत आई थी जब हमने इजगार्ड लॉन्च किया था. उस समय दिक्कत आई थी क्योंकि उसमें हमारे मेल भी टारगेट ऑडियंस में थे. मैं और दीपम बोलते हैं यार हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्या हो गया, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, आइडिया इतना अच्छा है. तो हमने जाके उनका बिहेवियर देखा कि जैसे एक एडवर्टाइजिंग ब्रेक आता था वो दबा के दूसरे जगह चले जाते, दूसरे से तीसरे जगह थे, तो हमारे पकड़ में नहीं आते. फिर हमने डिज़ाइन किया उस कैंपेन को कि बोला कि जितनी चैनल्स है उसके हर एक ब्रेक के अंदर में अपनी ऐड आनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा ये आदमी. उसके बाद में उसके 20 दिन के बाद में हमको इम्पैक्ट मिली थी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्सो, हाउ ही थिंक्स, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस. इसीलिए मैं ऑलवेज सोचता हूँ, मैं एक ट्राइंगल बनाया हुआ है मेरे लिए, हु एम आई, वाई बाई मी एंड हु विल बाई मी. ठीक बात है. ये 3 को अगर आपने लिख दिया आपका प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगा. हु एम आई, वाई बाई मी एंड हु विल बाई मी. आप रियल एस्टेट में भी इसको लिख सकते हैं, हर एक इंडस्ट्री में इसको लिखा जा सकता है. इसी में मार्केटिंग है आपका. Ankur, where are you? Hurrah. This morning, you can take this line now next. है ना? अभी very quick questions अब. Product, marketing या distribution, आपका सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पे रहा है? And why? मार्केटिंग में अधिक ये टीम से होता है. कोई भी चीज़ है एक आदमी नहीं करता है, टीम से करता है. तो मैं आइडियाज़ में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एडवर्टाइजिंग में बिजी रहता हूँ. तो दीपम भाई को बोलता हूँ आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, फाइनेंस देख लो. मैंने आज तक विनी कॉस्मेटिक में अपने हाथों से मैंने एक चेक भी साइन नहीं किया है, जबकि उसकी वैल्यू $1 बिलियन की कंपनी है. मैंने एक भी चेक आज तक मेरी कंपनी का साइन नहीं किया. Core competence, I think that is the key that we take away from that. अच्छा, अब आप इसे दान दीजिए, दक्षिणा तो नहीं दे सकते. हमारे सब रियल एस्टेट वालों को बता दो, क्या ऐसा एक आइडिया है रियल एस्टेट वालों के लिए जो आप अगर इस बिजनेस में होते तो आप करते? मैं अगर देखूँ ना, अर्बन की बात कर रहा हूँ, मैं रूरल की बात नहीं करता हूँ. अभी जहाँ भी जा रहे हैं ना, वहाँ पे हर एक जगह पे पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है. ठीक बात है. मैं अगर कोई रियल एस्टेट बनाता तो वहाँ पे अगर मैं रियल एस्टेट देखता हूँ तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग घर अच्छे बनाते हैं, बना के उसको बेच देते हैं, लेकिन जो अंदर घर के अंदर रहता है, ठीक बात है, अगर उसको सोच के बनाओगे, उसकी दिक्कत को सोच के. आजकल में एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थिंग. सो कैन यू डू समथिंग. हम खिड़कियाँ देते हैं लेकिन खिड़कियाँ खोलता है तो बाहर पॉल्यूशन है. खिड़कियों को बंद करके फ्रेश एयर देने से, ये मेरे लिए आइडिया है क्योंकि मैं एक नया घर बना रहा हूँ मेरा. तो अब वो मेन रोड के ऊपर में, वहाँ से डस्ट आएगी, सब आएगी. मैंने बोला यार मैं खिड़की खोलूँगा ही नहीं, खिड़की खोलेंगे तो डस्ट आएगी, ऐसा होगा. तो मैंने क्या किया, घर के अंदर में फ्रेश एयर सिस्टम लगाया. अगर
हम फ्लैट्स बना रहे हैं, वहाँ पे अगर फ्रेश एयर सिस्टम लग जाए, जहाँ से पॉल्यूशन इज ए बिग बिग प्रॉब्लम, ठीक बात है, वो घर में भी जाने वाला है, तो मैं ऐसे आइडिया सोचूंगा कि जहाँ पे वो कंज्यूमर के प्राइस पॉइंट में फिट होना भी जरूरी है। अब 45 लाख के घर में शायद नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप लग्जरी के अंदर में हो तो ऐसे आइडियाज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं अगर जाऊंगा, समझूंगा, मैं और शेखर भाई काफ़ी बार बात भी करते हैं कि कभी आइडिया शेयर करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वी कीप ऑन शेयरिंग विद दैट थिंग। लेकिन आप अगर कंज्यूमर को दिमाग में रख के आपका प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको सक्सेस अधिक मिलेगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट में भी ऐसा है, इज़ अबाउट एवरीबडी इज़ बिहाइंड एवरीबडी इज़ बिजनेस। आपने स्कीम यहाँ लॉन्च की, आपके फ्रेंड ने वहाँ लॉन्च की, आप दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट कर रहे हो। दैट मीन्स कि यू वांट टू टेक अवे हिज कस्टमर टू योर प्लेस, योर कस्टमर ही वांट्स टू, एवरीबडी इज बिहाइंड एवरीबडी इज बिजनेस। फॉर्चुनेटली आज की तारीख में ऐसा नहीं है, हम सब कस्टमर को मीन्स वी आर जस्ट सर्विंग द कस्टमर बिकॉज देयर आर सो मेनी। बट आपको जस्ट वन, मीन आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, बट दिस क्वेश्चन टू यू, आपने जैसे वो क्या चेहरे से राजरानी राजरानी और पैरों से नौकरानी, अगर यही आइडिया रियल एस्टेट वालों को सेल करना हो तो आप ऐसा क्या टैगलाइन सोच सकते हैं कि फ्रेश एयर इन द हाउस के लिए? शायद मैं आपको टफ स्पॉट में डाल रहा हूं, बट ऐसे कुछ भी। सिर्फ मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा है कि हर एक चीज के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक बात है। जैसे खुजली के लिए हमने लिखा था, खुजली में क्या था, खुजली करो एक बार, करनी पड़े बार बार, अच्छा है लगाओ इचगार्ड, ठीक बात है। सो उसको तैयार करने के लिए हमें मालूम था कि लोगों को इचिंग होती है, दे कीप ऑन स्क्रैचिंग टिल दे आर आइदर सेटिस्फाइड और थक जाते हैं, तब तक वो चालू ही रखते थे। तो हम उसको हमने लिख दिया, भाई खुजली करोगे एक बार, करनी पड़ेगी बार बार, अच्छा है लगाओ इचगार्ड। तो रियल एस्टेट के लिए भी अगर फ्रेश एयर इन होम, राइट, अगर मुझे कुछ सोचना है तो मैं शायद अभी लंच लेते लेते कुछ दिमाग में आएगा तो बता दूंगा। शेखर भाई, आपने हमें बताया नहीं, आप लोग ये आइडिया शेयरिंग करते हो, हमको भी बुलाओ भाई, हम भी शेयर करना चाहते हैं। दर्शन भाई की वजह से हर प्रोजेक्ट शेखर भाई लास्ट 5 साल में 5 महीने में भेज देता हूं। सर मैं शिफ्ट हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं, और प्लीज आप कभी रियल एस्टेट में मत आना, नहीं तो हम सबको निकलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। बट गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच दर्शन भाई, आपने आपके सारे व्यूज हमारे साथ शेयर किए। आई रियली एंजॉयड द सेशन, आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू डिड। यस, थैंक यू।